سب سے پہلے آپ کو بتائیں تجاوزات ختم، شہر کی تاریخی مارکیٹیں بحال کی جائیں گی۔ ایمپریس مارکیٹ کی تزئین و آرائش کا کام تیز، پارکنگ بھی فعال۔ ایمپریس مارکیٹ کو جلد سولر سسٹم پر بھی منتقل کیا جائے گا۔ کینٹ اسٹیشن کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ۔ غیر قانونی طور پر بنے ٹرانسپورٹرز کے دفاتر مسمار PECHS بلاک 6 میں بھی غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں۔ میئر کراچی کی مسائل اور ان کے حل پر گفتگو۔ مرتضی وہاب شہر کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بھی پرعزم۔ انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ انٹر امتحانات میں صرف 9% لڑکے کامیاب۔ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب 45% رہا۔ پہلی تینوں پوزیشنز بھی لڑکیوں کے نام رہی۔ کل 28,259 میں سے صرف 2,578 لڑکے پاس ہوئے۔ کامیاب طالبات کی تعداد 12,994 رہی۔ انٹر پری میڈیکل کے نتائج 44%، طلبہ ناکام ہو گئے۔ سرکاری کالجز پوزیشن سے محروم ہو گئے۔ 3 پوزیشنز نجی کالجز نے حاصل کی۔ پری میڈیکل گروپ میں کامیابی کا تناسب 56% رہا۔ 15,572 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ پری میڈیکل گروپ میں 27,323 امیدوار شریک ہوئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے لائبہ آپ کو ہم مبارکباد دیں گے کہ خواتین نے یہاں میدان مار لیا ہے تعلیم کے میدان میں، اور ایک اہم خبر یہ ہے کہ سٹی 21 کی خبر سچ ثابت ہوئی۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے قوانین سے آگاہی کے لیے مختلف شاہراہوں پر SMDs لگانی شروع کر دی گئی۔ سٹی 21 نے گزشتہ روز SMDs لگائے جانے کی خبر نشر کی تھی۔ شہریوں میں ٹریفک قوانین سے آگاہی مہم کے سلسلے میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر 100 سے زائد SMDs لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں شاہین کمپلیکس، PIDC اور میٹروپول پر نصب کی گئی ہیں۔ DIG ٹریفک کی ہدایت پر شہر بھر کی سڑکوں پر SMDs لگائی جا رہی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں اہم شاہراہوں پر سائن بورڈز بھی لگائے جائیں گے۔ 14 اگست سے کراچی میں چلاننگ سسٹم آن کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ہم تو ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، یہ اس لیے چلایا ہے تاکہ لوگ روک کے اس کو چلتی ہوئی کو دیکھیں، اس پہ عمل کریں، اور بہت اچھا ہوگا۔ یہ سیف سٹی والے وہ بھی ابھی آگے، ابھی یہ چلان ہوں گے، وہ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ جائیں گے۔ یہ 14 اگست کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ چلان سسٹم شروع ہو جائے گا، جیسے لاہور میں بھی چل رہا ہے، اسلام آباد میں بھی چل رہا ہے۔ یہ ابھی فرسٹ ٹائم تو یہ ابھی شہین چوک، شہین پہ، اور دوسری میٹروپول پہ، تیسری جو ہے PIDC پہ، اور مختلف جگہوں پہ کراچی شہر میں کافی جگہوں پہ اور بھی لگ چکے ہیں۔ آن لائن منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ IJ سندھ کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ گٹکا ماوا تیار اور فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا۔ غلام نبی میمن کی منشیات مافیا کے خلاف 80% اہداف حاصل کرنے پر پولیس کو شاباش۔ DIG اسپیشل برانچ کے مطابق منشیات فروشوں کی فہرست میں شامل بڑے نام پکڑے گئے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 2 ایگزیکٹو انجینئرز 15 کروڑ ہڑپ کر گئے۔ تھرپارکہ میں RO پلانٹس کی مرمت کے فنڈز میں خرد برد۔ الزامات ثابت ہونے پر ایگزیکٹو انجینئر محمد اسلم اور اشفاق علی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چیف سیکرٹری کی دونوں افسران سے رقم واپس لینے کی ہدایت۔ بدعنوانی اور بے ضابطگی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ آپ کو بتائیں کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 2 ایگزیکٹو انجینئرز 15 کروڑ ہڑپ کر گئے۔ تھرپارکہ میں RO پلانٹس کی مرمت کے فنڈ میں خرد برد۔ الزام ثابت ہونے پر ایگزیکٹو انجینئر محمد اسلم اور اشفاق علی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چیف سیکرٹری کے دونوں افسران سے رقم واپس لینے کی ہدایت۔ بدعنوانی اور بے ضابطگی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا اعلان کیا۔ ریسنگ کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر ہے۔ ہب کا میدان ایک بار پھر سجنے کو تیار ہے۔ 12ویں ہب ریلی 17 اگست کو گدانی کے ساحل پر ہوگی۔ چیف آرگنائزر شجاعت شیروانی کہتے ہیں کہ ہب ریلی 50 کلومیٹر کے خطرناک ٹریک پر مشتمل ہوگی۔ ایونٹ میں 14 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر ہر روز نئی بلند سطح قائم ہوئی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 4,347 پوائنٹس بڑھ کر 1,45,382 پر بند ہوا۔ شیئرز کی قیمتوں میں اضافے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 435 ارب روپے بڑھ گئی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہر دن نئی اڑان، ہر روز نیا ریکارڈ۔ 100 انڈیکس نے ہفتے بھر تیزی کے جھنڈے گاڑے۔ کاروباری ہفتے کے دوران 100 انڈیکس 4,347 پوائنٹس بڑھ کر 1,45,382 پر بند ہوا۔
हफ्ते की बुलंद तरीन सतह 1,46,813 जबकि कम तरीन सतह 1,41,440 रही। एक हफ्ते में 3 अरब 26 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 233 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमाकारों की जानिब से भरपूर खरीदारी के रुझान ने मार्केट में तेजी पैदा की। कारोबारी हफ्ते के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन 435 अरब रुपए इजाफे से 17,342 अरब रुपए तक जा पहुंची। सरमाकार इस वक्त माशी अदद-ओ-शुमार और मालियाती पॉलिसी पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के मसाइल और सिंध की महरूमियों पर अमीर जमात इस्लामी कराची की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे पर शदीद तनकीद। शिकवा किया कि तालीम का फरोग किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची का इदारा नूरक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनम जफर खान बोले, सिंध असम्बली में तनख्वाहों और मराहत में इजाफा हो गया, लेकिन और अवाम गुर्बत के लकीर से नीचे है। मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं हब केनाल में 2 जगह शगाफ डाले गए, ये मजाक है या अलमिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इंकशाफ किया कि सिंध के 41,000 स्कूलों में से 27,000 में बिजली नहीं, 15,000 में पानी और 11,000 में बैतुल खला तक मौजूद नहीं है। कराची में पानी का बहरान पर जमात इस्लामी ने हुकूमत को नाकाम करार दिया है और MQM को इसका जिम्मेदार ठहराया है। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं कि शहर में फिजियोथेरेपी की अहमियत बढ़ गई। नौजवान और बुजुर्ग भी फिजियोथेरेपी और वर्जिश को मामूल बनाने लगे। माहिरीन का कहना है कि सेहत का ख्याल रखना है तो मेयारी खुराक भी इस्तेमाल करना होगी। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। जोड़ों और पट्टों में तकलीफ की शिकायत। कराची में बुजुर्ग अफराद समेत नौजवान भी बड़ी तादाद में फिजियोथेरेपी और वर्जिश को मामूल बनाने लगे। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ के डॉक्टर बहुत ख्याल करती हैं और मुझे तकरीबन 2 से 3 साल हो गए फिजियोथेरेपी करते हुए और काफ़ी आराम आ रहा है। पुलिस के यहाँ पर एरिया में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पर फीमेल्स के लिए ख़ासकर बहुत अच्छा है। इजीली कंफर्ट जोन में रहकर, अपने पर्दे में रहकर हम अपनी बॉडी के लिए बहुत देखभाल कर सकते हैं। पुलिस अस्पताल में मौजूद माहिर फिजियोथेरापिस्ट फजीला सहर का कहना था कि फिजियोथेरेपी एक महफूज और मौसर इलाज है जो आपको मुतहरक रहने में मदद देता है। तो ये जिम का बेसिकली पर्पस ये है कि हम लोग स्ट्रोक के पेशेंट्स को केटर कर सकें और हम लोग जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है, मेल फीमेल और हमारे पुलिस एहलकार जितने भी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी फीमेल्स बाहर जाती हैं, उनको काफ़ी मसले मसाइल पेश आते हैं। और ये जिम जो आपने देखा है, जिम के साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो 1500 से 2,000 या 3,000 तक भी चला जाता है। तो यहाँ हम ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली पुलिस हॉस्पिटल है तो पुलिस की फैमिलीज़ के लिए ही बनाया गया है। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने भी अवाम को हिदायत की है कि वो वर्जिश को मामूल बनाएं और साफ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें ताकि सेहतमंद रहें। कैमरामैन काशिफ कैमरा, इब्राहिम रेन, सिटी 21। जश्न आज़ादी के मौका पर कराची ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद का बड़ा इक़दाम। LRBT अस्पताल के ताउन से 1 रोज़ा आंखों का मुफ्त कैंप लगाया गया। बड़ी तादाद में मजदूरों और इलाका मकीनों ने सहूलत से फायदा उठाया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी मनाने का मुनफरिद अंदाज। कराची ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद की जानिब से कपड़ा मार्केट खारादर में LRBT अस्पताल के तामुन से 1 रोज़ा आई कैंप लगाया गया। कैंप में बड़ी तादाद में मजदूरों और इलाका मकीनों ने मुफ्त मुआयना कराया। सर्जरी के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन भी की गई। मुफ्त कैंप का रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर अरशद वोहरा, कराची ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन नासिर मकानी और दीगर ने भी दौरा किया। कहा कि हर खुशी के मौका पर अवाम को याद रखा जाता है ताकि उनको मजीद बेहतर तिबी सहूलतें मुयसर हो सकें। ये ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद और LRBT के ताउन से जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, ये लोगों की खिदमत हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और याकूब भाई ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। हमने 2 दिन पहले लोगों को लाइसेंस बना के दिए। अब हमने कहा कि लोग आंखों का भी अपना जो भी मायना है वो करवा लें। तो ये 14 अगस्त की खुशी में हमने कहा इंसानियत का एक काम होता है, उसके लिए कर रहे हैं। कराची ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद के सदर याकूब बाली, सदर सराफा बाजार शाकिर फैंसी और रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ जोजी ने कहा कि इस महंगाई के दौर में आंखों के हवाले से मुफ्त कैंप लगाना किसी नेमत से कम नहीं। कोशिश ये की हमारा वो मुतवस्सित तबका जो इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, पैसे नहीं खर्च कर सकता, उनको यहाँ उनके घर में सहूलत दें। आज उनको ऐसा निज़ाम इन्होंने दिया है कि अल्लाह की तरफ से भी इनको दोनों को दुआ और टीम को दुआ होगी। और आप समझते हैं कि इस तरह के काम ताजिर बिरादरी अक्सर करती रहती है। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि कौन पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, सबके लिए ये कैंप लगाया गया है जिसमें हम ऑपरेशन भी करवा रहे हैं।
कैंप में आने वाले शहरी बोले महंगाई के दौर में मुफ्त और घर के करीब तिब्बी सहूलत मिलना किसी नेमत से कम नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताजिर बिरादरी। सही है कि जो शख्स आजकल आपको पता है महंगाई भी कितनी है कि डॉक्टरों को पे जाना 2,500-3 हज़ार रुपये का है खर्चा, तो ये फ्री कैंप लगाया हुआ है, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी इस टाइम पे आंखें बहुत ज़्यादा दुख रही है, ऑपरेशन हुआ है, फिर दर्द बहुत हो रहा है, तो मैंने देखना है कि मैं चेक करा लो। अच्छा चश्मे भी हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस मौका पर LRBT के डॉक्टर्स और दीगर अमले ने भरपूर अंदाज में मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मुफ्त चश्मे भी फराहम किए। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार सज गया, जहां हौजरी आइटम, परफ्यूम, कढ़ाई की जदीद मशीनें एक्सपो का हिस्सा, खवातीन की स्कूटी भी मौजूद। सिंधी सकाफत के मलबूसात भी आवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। ताजिर इत्तेहाद रहनुमा अब्दुल्ला शारी ने नुमाइश को बेहतरीन इक़दाम करार दिया है। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा ग्लोबल बाजार का दूसरा दिन। ग्लोबल बाजार एक्सपो में मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, जदीद मशीनी आलात, कंप्यूटर, कढ़ाई की मशीनें शहरियों की तवज्जो का मरकज़। और तो और सिंध की सकाफत की अजरक, रिल्ली, कढ़ाई के कुर्ते भी मरकज़ निगार है। ग्लोबल बाजार एक्सपो की मुंतजिम गौसिया कहती हैं कि गैर मुल्की कंपनियां भी नुमाइश का हिस्सा हैं और कई अहम MOUs भी साइन होंगे। आप देखें चाइनीज़ आए हुए काफ़ी सारे नई इनोवेशंस लेकर, फैब्रिक है, क्लोथिंग है, उसके अलावा जो है गारमेंट एक्सेसरीज़ है, टेक्सटाइल मशीनरी है। तो मतलब मैं इनवाइट करूंगी सीनियर मैनेजमेंट जो है हमारी इंडस्ट्री की, वो आएँ, विज़िट करें और नई इनोवेशंस देखें। एक्सपो सेंटर को खुशबू से महकाने वाले ज़ुहैब कहते हैं कि हमने रियायती निर्ख पर परफ्यूम रखे हैं, ऐसी नुमाइश का होना खुश आइंद है। और इसमें यूनाइटेड ब्रदर्स फॉरएवर जो हमारी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इसके तहत जो है परफ्यूम्स हमने डिस्प्ले की हैं, जो कि ऑलरेडी 7 कंट्रीज़ में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल्ला शारी ने खवातीन को महफूज सफ़र के लिए स्कूटी मुतारिफ कराई और बोले महफूज सफ़र के लिए खवातीन की दिलचस्पी नज़र आती है। स्कूटीज़ आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जो है खवातीन की सवारी का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स आपके सामने दे रहे हैं। और ये पहली बार तमाम फीचर जो आप 2, 4, 5 करोड़ वाली गाड़ियों में देखते हो, फीचर्स इनके अंदर भी मौजूद है। क्रूज कंट्रोल सिस्टम है। शुरका ने कहा कि ग्लोबल बाजार एक्सपो में खवातीन, बच्चों, सनतकारों की बड़ी तादाद दौरा करने पहुंच रही है और रियायती निर्खों पर अशिया खरीद रही है। ऐसी एक्सपो का होना आवाम के लिए एहसन इक़दाम है। कैमरामैन कमर आब्दी के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। जश्न आज़ादी मार्का हक की कामयाबी के मुनासबत से महकमा खेल और नौजवान उमूर की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी। डिस्ट्रिक्ट करंकी के मखदूम बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। मोरका हक और आज़ादी का जश्न। महकमा खेल की जानिब से कोरंगी में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद। इवेंट में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने महकमा खेल की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे इवेंट्स तसलसल के साथ जारी रहेंगे। जी, ये बहुत अच्छे कि ऐसे इकदाम बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि यूथ यहाँ पर बहुत सारी आई हुई है और खासकर ऐसे हालात में जहाँ कोर्ट्स की कमी है, ग्राउंड्स की कमी है, ऐसे इवेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। नए टैलेंट को आगे लाने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए डेफिनेटली आज यहाँ बहुत सारे लोग इस क्लब के मेंबर भी बनेंगे जो बाहर से आए, तो ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत लॉन्ग टर्म में जो है वो फ़ायदा देंगे ये जो इवेंट्स हैं ऐसे। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर की क़यादत में सूबे के हर ज़िले में खेलों के मुकाबले मुनक़द किए जा रहे हैं ताकि नया टैलेंट सामने आ सके। कैमरामैन अजलान छिबा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।